Hello and welcome everyone to the part 6 of chapter electricity. Till now, we have completed the introduction part, which is related to the direction of current. Then, after the introduction of electric current, then the potential difference, then Ohm's law, series and parallel connection, resistance, factors affecting resistance, electric power, and its units. So, these are the topics that are already covered in the electricity's first 5 videos. Okay, so I'll request you all, those who are watching this video first, to watch those 5 videos first. Obviously, after that, you will understand what is going on in this chapter. The last topic, that is heating effect of electric current, and then after the practical application of the same, is the pending part. अभी तक जितने भी टॉपिक हमने किए, in most of the topic you will see a formula and then after followed by ASI units and numericals. But this part of the chapter, which you will say quite theoretical. Okay, so last two topics of the chapter, which will be covered in electricity part 6, that is heating effect of electric current. सबसे पहले we will try to understand what is the meaning of this heating effect of electric current. Okay, so I will give you an analogy first. Like whenever we hear a word heat, okay, right now we know that if you will, like if it's winter going on, we'll rub our hands and you will feel that warmth, that heat, correct? So like because of the surfaces, when comes in contact, we know that there is a frictional force in between, so that friction or that energy that we are using in rubbing is converted into heat. Similarly, whenever the electric current flows inside a conductor, the property of a material, which is the resistance, which opposes the flow of current, because of that opposition, like see, when you rub your hands, you are rubbing it in opposite direction. Okay, so because when the energies are used in a way that it is like lost, or you can say utilized also in heat form. Similarly, when current flows inside a conductor, at that time the property of a material, which we call it as resistance, which will oppose the flow of current. ओके, तो करंट जैसे ही जा रहा है उसको अपोज कौन कर रहा है भाई? रेजिस्टेंस. बिकॉज ऑफ दिस अपोजिशन, अब इलेक्ट्रिक करंट के पास कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी ऑपोजिशन के कारण? हीट एनर्जी में. जैसे फ्रिक्शनल फोर्स में ऑपोजिट डायरेक्शंस में सरफेसेस जब रब करती है, तब वही जो वर्क आपने किया वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. वैसे ही जब करंट फ्लो करता है, तब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, रेजिस्टेंस के कारण वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में. दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये करंट का एक इफेक्ट है. ओके, मतलब जब करंट फ्लो होता है उसकी वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है. बट दिस इलेक्ट्रिक करंट हैज वन मोर इफेक्ट, और उस इफेक्ट के ऊपर तो पूरा चैप्टर है आपका. दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट्स, कि भाई जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है. कमिंग बैक टू द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट. ओके, सो आई होप नाउ दैट इज अंडरस्टूड कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, अपोज करेगा रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में. ओके, तो रेजिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नीडेड. तो जब भी हम आगे अगर कुछ फॉर्मूला बनेगी इसकी, हीट की, हीट एनर्जी की, तो उस फॉर्मूला में एक चीज तो हमें पता है क्या आनी चाहिए? रेजिस्टेंस. ओके, तो अगर फॉर्मूला में रेजिस्टेंस ना आए तो हमें कुछ भी करके उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज theoretically we understood that resistance is required when electric energy is converted to heat energy due to resistance. The same is called as heating effect of electric current. These are the two formulas of electric power. एक क्या थी भाई? वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम, या फिर कि पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर. एंड अनदर फॉर्मूला वाज VI, वोडाफोन आइडिया, दैट यू नो. ओके, नाउ वर्क डन क्या होता है भाई? यूनिट जूल. वैसे ही हीट क्या है? एनर्जी. जितनी भी एनर्जी से सबका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल. दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस द SI यूनिट्स एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. तो पावर की एक फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, और एक फॉर्मूला है VI, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट. अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्वियसली, वैसे ही जो वर्क डन आप करोगे
तभी तो करंट फ्लो करेगा। याद करो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। एक चार्ज पे जब वर्क डन करोगे तभी इलेक्ट्रॉन यहां से वहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा, जिसी को आप करंट कहोगे। अंडरस्टूड? तो वर्क डन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप वर्क डन करोगे तो वो वर्क डन वाली जो एनर्जी है वही तो किस में कन्वर्ट होगी, मतलब वर्क डन ही किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। तो वी कैन रिप्लेस दैट डब्ल्यू बाई एच। डब्ल्यू जो वर्क डन है उसकी जगह आप एच मतलब हीट लिख सकते हो, क्योंकि वही एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लास 9th इफ यू रिमेंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी obviously can neither be created nor be destroyed, it can just transfer from one form to another form। तो वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया भाई, हीट एनर्जी में। मतलब आप W को H से रिप्लेस कर सकते हो। डन, और हो भी रहा है प्रैक्टिकली। तो वी कैन राइट H by T and VI because both are the formulas of electric power। You will get H by T equals to VI। फाइंड क्या करना है हमें, हीटिंग इफेक्ट के लिए हीट एनर्जी की फॉर्मूला। डन। तो H को सब्जेक्ट बनाओगे, इस तरफ आ जाएगा T, तो H will be equals to VIT। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि भाई हीटिंग इफेक्ट हो ही किसकी वजह से रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से। तो उसका आर आना चाहिए ना, यहाँ पे आर नहीं आ रहा है, तो इसमें वी दिख रहा है आपको, उसकी जगह आई आर लिख दोगे। यू विल गेट आई इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर आर एन टी एज इट इज। तो आई स्क्वायर आर टी, इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब स्टेटमेंट समझो, जैसे ओम्स लॉ था वैसे एक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ऑब्वियसली हीट है, हीट का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द लॉ इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, अब स्टेटमेंट समझो इसकी। स्टेटमेंट क्या कहती है, यही फॉर्मूला, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब करंट का स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट एनर्जी। सेकेंड थिंग इज heat energy is directly proportional to the resistance of the material, and heat energy is directly proportional to the time of flow of current। बस खत्म। बस तीनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है, डायरेक्टली आएगा, तीनों न्यूमरेटर में है देखो। दैट्स व्हाई, so that becomes, you can say, the statement of Joule's law of heating। So that is all about the heating effect of electric current। Next topic is practical application of Joule's law of heating or heating effect of electric current। नाम में ही आंसर है कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने इतना समझा, क्या उसका कुछ रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, कहीं पे काम आता है हमें? यस। तो जहां पे भी आप समझो, जहां पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट हो रही है और उसे आप यूज कर रहे हो, मतलब इन अ पॉजिटिव सेंस, कहीं काम आ रहा है आपको, सो दैट इज योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला क्या यूज है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयन। आयन यूज किया है ना सबने, तो उसको टच मत करना, लेकिन टच करोगे तो क्या होगा, यू विल फील दैट हीट। ऑब्वियसली यू विल यूज इलेक्ट्रिसिटी टू गेट दैट हीट, तो बिकॉज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक टोस्टर। सुबह नाश्ता करते हो ना, टोस्ट, तो इलेक्ट्रिक टोस्टर जो है दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक ओवन, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और फिर हीट में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिक केटल, पानी वानी गर्म करते हो कि नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में भी वही चीज, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक हीटर एंड एक्सेट्रा। तो बहुत सारे चीजें, ज्यादातर विंटर में आपको पता होगा इलेक्ट्रिक हीटर हम यूज करते हैं, डन, पानी गर्म करने के लिए। इन डिटेल बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन इन डिटेल वी विल स्टडी ओनली टू एप्लीकेशन, दैट इज द इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें कैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम आता है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज, और उसमें भी आपको इतना ही याद रखना है, थ्योरेटिकल टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब पता ही है आपको, बाहर ग्लास है, उसके अंदर एक फिलामेंट है। इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या है, टू कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे आप तो लाइट थ्रो करेगा बाहर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो आपको डाउट आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है, तो हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन कैसे हुआ भाई? करेक्ट, हीटिंग का ही ये एप्लीकेशन है। हीट में से ही थोड़ी एनर्जी लाइट में फॉर्म होती, लाइट में कन्वर्ट हो सकती है, ट्रांसफर होती है। सो हियर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट, एंड यू कैन से वेरी लेस हीट इज कन्वर्टेड टू लाइट। तो मेन पर्पस तो हीट में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन हीट का थोड़ा पार्ट लाइट में आ जा रहा है, वही अपन यूज कर जा रहे हैं। अब फिलामेंट जो है बल्ब के अंदर, वो फिलामेंट किससे बना होता है, कौन से मटेरियल से, कौन से मेटल से बना होता है, दैट यू नो, टंगस्टन। अब इसका रीजन है, व्हाई ओनली टंगस्टन, दूसरा कोई मेटल क्यों नहीं भाई?
तो ये इन दो रीजन की वजह से। ओके, अब इसका मीनिंग भी समझना, ये यहां से आपको याद तो रह जाएगा लेकिन समझना आपको पड़ेगा डिटेल में। इट हैज हाई, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं भाई, मेल्टिंग पॉइंट, एंड हाई रेजिस्टेंस। तो दो रीजन है कि हम टंगस्टन यूज करते हैं। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कितना है देखो, अराउंड 3380 डिग्री सेल्सियस। जस्ट इमेजिन 50 डिग्री सेल्सियस में भी क्या हालत होती है अपनी। तो इतना टेम्परेचर भी अगर जाए तो उसके बाद ये मेल्ट होता है। एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इट स्टार्ट्स मेल्टिंग टंगस्टन। तो इतना टेम्परेचर तो नहीं जाएगा। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस फ्लो करा रहे हो, इसी वजह से क्या होगा, वो चीज गर्म हो जाएगी। अब इसका मीनिंग भी समझो आप। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट में एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा मटेरियल का उतना ही ज्यादा हीट में डिसिपेशन होगा। और जितने ज्यादा टाइम के लिए आप करंट यूज करोगे, सुबह आपने टीवी चालू किया, 1 घंटे टीवी देखा फिर बंद कर दिया, अब उसी 1 घंटे के बजाय आप 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे चालू रखो, फिर आप टच करो, तो जो एक्सटेंट ऑफ हीटिंग है वो डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली ज्यादा टाइम के लिए यूज करोगे तो ज्यादा गर्म होगा, मतलब हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑल्सो। तो टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट करंट और रेजिस्टेंस है। कमिंग बैक टू टंगस्टन, अब हमने टंगस्टन ही क्यों यूज किया, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब करंट फ्लो होता है तब टेम्परेचर बढ़ता है, हीट है मतलब टेम्परेचर। ओके, जितना ज्यादा गर्म होगा मतलब उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए लेकिन इतना तो नहीं होगा 3380 डिग्री सेल्सियस, ये है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। इतना जब टेम्परेचर होगा तब टंगस्टन मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। उससे पहले तो वो रिलैक्स रहेगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, रेड हॉट भी भले हो जाए लेकिन मेल्ट नहीं होगा। तो दैट इज वाई वी आर यूजिंग टंगस्टन, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, हाई रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट में कन्वर्जन भी ज्यादा होगा, वही तो चाहिए हमें। तो हीट में कन्वर्जन के लिए हाई रेजिस्टेंस है इसका, इसलिए टंगस्टन यूज हो रहा है। और टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए लेकिन इतना तो नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड। ओके, दिस आर द टू रीजंस। अब आपको क्या लगता है कि भाई जो बल्ब है उसके अंदर कुछ गैसेस वैसेस होते हैं कि नहीं होते? ऑब्वियसली देयर आर सम गैसेस, दैट इज योर इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस, उसका मिक्सचर होता है। सो अब क्यों आप नाइट्रोजन और आर्गन यूज कर रहे हो? टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। ज्यादा पता है आपको कि रोज रोज तो आप चालू करने वाले हो, मेल्ट नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा वीक तो होता ही जाएगा वो, इतना ज्यादा आप गर्म कर रहे हो तब। तो वही फिलामेंट की लाइफ को और एक्सटेंड करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए, सेव करने के लिए वी आर यूजिंग दीज गैसेस, ताकि उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाए। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन, यू कैन से डिटेल, वेयर यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, दैट्स ऑल। वहां से फिर 1 मार्क का, 2 मार्क का, कितने का भी क्वेश्चन बने, यू कैन अटेम्प्ट इट इजीली इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। अनदर एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। पता है ना, जब भी बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है तब आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या फिर जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके घर में, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है ओवरलोडिंग के कारण। अब होना तो नहीं चाहिए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, फ्यूज। ऑब्वियसली इट इज यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट और अप्लायंस, सर्किट कह दो या फिर कोई भी अप्लायंस कह दो, ठीक है, क्योंकि रोज रोज तो अपन नया अप्लायंस नहीं ले सकते, शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग तो कभी भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमेशा किसमें कनेक्ट होता है ये, सीरीज में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फ्यूज इज ऑलवेज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे घर में जो वायर से मेनली 3 कलर का इंसुलेशन होता है, उसका एप्लीकेशन भी उस तरह से है। ओके, इन मैग्नेटिक इफेक्ट वी विल स्टडी दैट लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग। और लाइव वायर के साथ ये फ्यूज वायर कनेक्ट होता है, वहां पे वापस हम फ्यूज वायर का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अब फ्यूज वायर में भी क्या है, देखो इसमें दो चीज थी, फिलामेंट टंगस्टन से बनता है, क्यों? हाई रेजिस्टेंस है और हाई मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही जो फ्यूज है उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें लो रखना है और रेजिस्टेंस हमें हाई चाहिए। तो उस टाइप का अपन अकॉर्डिंगली मेटल या फिर अलॉय यूज करेंगे। ओके, वो अलॉय एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, किसका भी हो सकता है। तो इसमें से किसी दो मेटल, 2 या 3 मेटल को मिक्स करके आप एक अलॉय बनाओगे।
और उससे बन जाएगा आपका फ्यूज वायर। मेटल के एंड्स होते हैं लेकिन बीच में क्या होगा, अलॉय या फिर मेटल, कुछ भी हो सकता है। अब मीनिंग समझो आप ध्यान से। फ्यूज वायर में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि करंट फ्लो करेगा जब भी, फ्यूज वायर से भी करंट जाएगा। अब ओवरलोडिंग होता है तब क्या होता है, जब एक्सेस करंट, जितना करंट चाहिए उससे ज्यादा करंट अगर आ जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तब शॉर्ट सर्किट हो उससे पहले समझो आप, जैसे ही करंट बढ़ेगा, करंट की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी, एक्सेस करंट जैसे ही आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है हमेशा, और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ा तब इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बहुत लो है ना भाई। तो जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, मेल्ट। जैसे ही मेल्ट हो गया तो सर्किट क्या हो गया, ब्रेक। सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या करंट फ्लो करेगा भाई, नहीं करेगा। ओके, दैट्स वाई लो मेल्टिंग पॉइंट इज, यू कैन से प्रेफरेबल। और हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इधर भी आई था और इधर भी आई है, क्यों, अब रेजिस्टेंस हाई होगा तभी तो ज्यादा हीट में कन्वर्ट होगा, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इसका क्या है भाई, लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो जाएगा सीधा। मेल्ट हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, और करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये यूज कैसे हुआ, ओके, यूज इसलिए कि अगर ये एक्सेस करंट फ्लो नहीं किया तो जो आपके घर में जो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड यू कैन से जो अप्लायंसेस है, जो आप रोज रोज नहीं खरीद सकते, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, एयर कंडीशनर है, ये सब प्रोटेक्ट कर लोगे आप फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड और गेटिंग अ शॉर्ट सर्किट देयर। तो ये सब चीजें बच गई। तो फ्यूज वायर जो भी है किससे बना होता है, मेटल या फिर इनमें से किसी के अलॉय से, मिक्सचर से। और क्यों हम फ्यूज वायर यूज करते हैं, या फिर उसका प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि जैसे ही करंट बढ़े, एक्सेस करंट जैसे ही हो मेल्ट हो जाए, लो मेल्टिंग पॉइंट है इसलिए। और हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। Another thing is it breaks the circuit when excess or unusually high current flows and hence protect the appliance. तो वही प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज। I hope these topics are understood to you. Still, if you face any problem, any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you. Physics works.